नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा पैसेज। ठीक, ये हमारा पैसेज आ गया दोस्तों। और इस पैसेज का जिस तरीके से हमने जो है फर्स्ट वाला पैसेज किया, जैसे हमने उसको 2 बार पढ़ा, उसको समझा और उसके बाद जो है हमने हमारे क्वेश्चंस किए और बहुत आसानी से क्वेश्चंस के आंसर्स हमको मिल गए। क्यों? क्योंकि हमने उसको अच्छे से समझा। तो दोस्तों आप लोगों को भी जो है मेरे साथ जो है इसको रीड करना है, फिर समझना है। ठीक है, चलिए आप शुरू करें रीडिंग, जब तक मैं एक जल ग्रहण कर लेता हूँ, है ना। आप स्टार्ट करें रीडिंग। चलिए, तो मेरे साथ में आपको रीडिंग करना है ना। शुरू करते हैं। एक बार हम लोग जो है एकदम स्लो पढ़ने वाले हैं और फिर दूसरी बार इस स्लाइड का जो पैसेज है उसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, फिर अगली वाली। I was so homesick during my first 2 weeks at St. Peter's that I devised a way of getting myself sent back home. My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendicitis. When I reported my sickness to the teacher, I was sent to matron. I entered the room clutching my stomach on the right hand side and staggering pathetically. "What's the matter with you, boy?" the matron shouted. "It hurts, matron," I moaned. "Oh, it hurts so much just here. You have been overeating," she barked. "I haven't eaten a thing for a day," I lied. She began prodding my tummy violently with her fingers. I was watching her carefully, and when she hit what I guessed was the appendix place, I let out the yell that rattled the window panes. "Oh, oh, oh," I cried out. "Don't, matron, don't." Then I slipped in the clincher. I have been sick all morning. ठीक है, तो ये जो है मैंने इसको पढ़ा, थोड़ा हमने स्लो पढ़ा। अब थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं फास्ट। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ें। I was so homesick during my first 2 weeks at St. Peter's that I devised a way of getting myself sent back home. My idea was that I should all of a sudden develop an attack of acute appendicitis. When I reported my sickness to the teacher, I was sent to the matron. I entered the room clutching my stomach on the right hand side and staggering pathetically. "What's the matter with you, boy?" the matron shouted. "It hurts, matron," I moaned. "Oh, it hurts so much just here. You have been overeating," she barked. I haven't eaten a thing for a day," I lied. She began prodding my tummy violently with her fingers. I was watching her carefully, and when she hit what I guess was the appendix place, I let out a yell that rattled the window panes. "Oh, oh, oh," I cried out. "Don't, matron, don't." Then I slipped in the clincher. I have been sick all morning. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट पैसेज। अब हम लोग सेकेंड वाला भी जो है पढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरी स्लाइड में ये जो है ख़त्म फिनिश हो जाएगा। सेकेंड वाला हम पढ़ते हैं 2 बार, उसके बाद फिर समझना शुरू करेंगे। तो एक बार स्लो पढ़ता हूँ मैं। आई मोन करना मतलब दर्द से कराहना, है ना, दर्द से एकदम चिल्लाना, रोना। This was the right move. Within an hour, the doctor arrived, and as he examined me, I did my yelping at what I thought were proper times. The matron returned half an hour later and said, your mother's coming to fetch you this afternoon."
I didn't answer her. I just lay there trying to look very ill. But my heart was singing all sort of wonderful songs. As I was taken home on a ferry, I felt so wonderful to leave that dreaded school building that I very nearly forgot I was meant to be ill. ठीक है, अब थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं. I moaned this was the right move. Within an hour, the doctor arrived, and as he examined me, I did my yelping at what I thought were the proper times. The matron returned half an hour later and said, "Your mother's coming to fetch you this afternoon." I didn't answer her. I just lay there trying to look very ill, but my heart was singing all sort of wonderful songs. As I was taken home on a ferry, I felt so wonderful to leave that dreaded school building that I very nearly forgot I was meant to be ill. ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो ये जो पैसेज हमने पढ़ा, इससे हमको एक रफ आइडिया इसमें पता चल गया कि एक लड़के का पूरी स्टोरी है जो कि एक स्कूल में पढ़ता है सेंट पीटर्स नाम के, और उस स्कूल में जो है उसको केवल 2 हफ्ते हुए होते हैं और उसके बाद जो है उसका इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाता है. उसको जो है बोरिंग फील होता है, उसको लगता है कि मुझे इस स्कूल में और आगे नहीं पढ़ना चाहिए. तो वो कुछ बहाने बनाता है और बीमारी का बहाना बनाता है. अपेंडिसाइटिस जो बीमारी है उसका बहाना, जो पेट के नाभि के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा वो बीमारी होती है, उसमें पेट दर्द होता है, एक्सट्रीम पेट दर्द होता है, तो बहाना बनाता है. तो उसको जो है सफल भी हो जाता है वो अपने जो बहाना है उसमें, और डॉक्टर जो है उसकी घर वो मम्मी को बुलाते हैं और उसको अपने घर भेज देते हैं और वो इस चीज़ से बड़ा खुश होता है. तो ये हमको जो है एक रफ आइडिया हमको पता चल गया कि ये स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, ये पूरा पैसेज किसके बारे में है. दोस्तों अब हम लोग जो है वर्ड टू वर्ड इसको समझने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमारा पूरा एकदम सारे कंसेप्ट हमारे इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाए. ठीक है ना. चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग. 1 मिनट, शुरू करते हैं. देखो क्या बोला जा रहा है, आई वॉज सो होम सिक. वहां पर देखो होम सिक का मतलब क्या होता है, जब हम हमारे घर से काफी समय के लिए दूर रहते हैं तो हम लोग होम सिक हो जाते हैं. घर की जब याद आती है ना, तो याद आने की वो जो चीजें हैं, हम लोग बार बार ऐसा लगता है कि घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए. तो वो जो मेंटल जो परिस्थिति होती है उसको होम सिकनेस कहते हैं. ठीक है, तो वो जो है होम सिक हो गया और वो फर्स्ट 2 वीक में ही रहा था. केवल पहले 2 हफ्ते ही, वो 2 हफ्ते ही उसको हुए थे यहाँ पर आए हुए. ये क्या है, सेंट पीटर्स. दोस्तों ये स्कूल का नाम है. ठीक है, सेंट पीटर्स जो है एक स्कूल, वो 2 हफ्ते उसमें रहा और वहां पर वो होम सिक हो गया, उसको घर की याद सताने लगी. और वो इतना ज्यादा होम सिक हो गया दैट आई डिवाइज्ड अ वे. उसने कुछ तरीके खोजे कि अब मुझे जो है घर कैसे जाऊं. वे गेटिंग माई सेल्फ सेंड बैक होम, कि यार मैं ऐसे क्या करूं, ऐसे कौन से तरीके, ऐसी तरकीबें लगाऊं जिससे मुझे जो है ये स्कूल खुद ही मुझे घर छोड़ दे, है ना. ऐसा उसने तरीके सोचने लगा. उसने पहले जो आइडिया था वो क्या था, माई आइडिया वॉज दैट आई शुड ऑल ऑफ अ सडन डेवलप एन अटैक ऑफ अक्यूट अपेंडिसाइटिस. एक काम करता हूँ, एकदम जो है मैं एक एक्टिंग करता हूँ एक अटैक की, मुझे एक अक्यूट अपेंडिसाइटिस का अटैक आया, मतलब पेट दर्द का अटैक आया, और बहुत जोर जोर से रोता हूँ, चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, इतना ज़्यादा चीखता हूँ कि सबको लगे कि हाँ कंडीशन बहुत सीरियस है और मुझे सब घर छोड़ दे, है ना. इस तरीके से उसने प्लानिंग बनाई. अब क्या हुआ, देखो पास्ट की वो अपनी बातें बता रहा है कि मैं ऐसा किया. व्हेन आई रिपोर्टेड, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जब मैंने जो है मेरी बीमारी के बारे में किसको बताया, सबसे पहले उसने किसको बताया, उसकी टीचर को बताया. तो उसकी टीचर ने उसको कहाँ भेजा, देखो पास्ट टेंस में चल रहा है, उसकी टीचर ने उसको भेजा मैट्रन के पास. मैट्रन का मतलब होता है जो स्कूल के लिए ऑफिशियली जो नर्स है, जो केयर टेकर, जो मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ें देखती है, नर्स जो है उसके पास भेजा. आई एंटर्ड, अब वो नर्स के रूम में गया. द रूम क्लचिंग माई स्टमक, एकदम ऐसे एक्टिंग करते हुए, बहाने बनाते हुए, ऐसे हाथ लगाते हुए, दर्द के ऐसा मुंह बनाते हुए, है ना, उसने अंदर पहुंचा. राइट हैंड उस पर रखा उसने, स्टैगरिंग पैथेटिकली, मतलब इस तरह से ऐसे बिल्कुल चक्कर खाते हुए, इस तरह लड़खड़ाते हुए चलने की एक्टिंग उसने की. व्हाट्स द मैटर. अब देखो ये किसने पूछा, मैट्रन ने कहा. देखो डायरेक्ट स्पीच है, मैट्रन ने ये कहा, क्या कहा कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, कि भाई लड़के क्या हुआ, क्या तुझे,
है ना। मैट्रन ने एकदम चिल्ला के बोला कि जैसे कि ज़्यादातर जो मैट्रन या वार्डन होते हैं ना, स्ट्रिक्ट तरीके से ऐसे पूछा, क्योंकि उनको पता रहता है कि बहुत सारे बच्चे जो है बहाने करके आ जाते हैं, है ना, स्कूल की पीरियड छुट्टी हो जाए उस कारण बहाने मारते हैं। तो उसने पूछा ऐसे, इट हर्ट्स मैट्रन, ये बड़ा दर्द करता है, दुखता है मुझे, है ना, ऐसे करके वो रोने जैसा मुंह किया। उसने बोला आई मोन, रोते हुए बोला वो, ओ इस तरीके से, इट हर्ट सो मच, कि मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है ना, इस तरीके से, जस्ट हियर, देखो ये यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसे करके हाथ लगाया। यू हैव बीन, फिर तो इन्होंने क्या कहा, मैट्रन ने, यू हैव बीन ओवर ईटिंग, कि तुम जरूर जो है बहुत ज्यादा तुमने खा लिया होगा। शी बाग, बाग मतलब एकदम जैसे डॉग कैसे बाग करता है, चिल्लाता है, वैसे उसने चिल्ला के, नहीं कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा, तुमने बहुत ज्यादा ठूस लिया होगा, ज्यादा खा लिया होगा, इस तरीके से कहा जा रहा है। आई हैवंट ईटन अ थिंग फॉर अ डेज, मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया मैंने, उस तरीके से सफाई दी उसने। आई लाइड, उसने झूठ कहा, ठीक है। शी बिगिन प्रॉडिंग माई टमी वायलेंटली, प्रॉडिंग मतलब ऐसे ऐसे करके दबाना, पूरी तरीके से उसकी जो टमी है वो दबाने लगी जोर जोर से, वायलेंटली विद हर फिंगर्स से इस तरीके से चेक करने लगी। आई वॉज वॉचिंग हर, के वो ध्यान से देख रहा था उसको। एंड वेन शी हिट व्हाट आई गेस वाज अपेंडिक्स, कि जब अपेंडिक्स वाला हिस्सा जो उसको इतना उसको नॉलेज था कि ये अपेंडिक्स है यहाँ पे, कि जैसे ही उसने यहाँ टच किया जोर से चिल्लाने लगा, ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि हाँ, क्योंकि मैं उसी बीमारी की बात कर रहा हूँ तो वहां चिल्लाऊंगा तो उनको सच लगेगा। तो आई लेट आउट अ येल, येल मतलब जोर से वो चीखा, येल्प है ना, चीखा। दैट रैटल, रैटल मतलब गूंजने लगा सब कुछ, विंडो पैन, आसपास की खिड़कियां वो भी खड़खड़ खड़खड़ इस तरह से, इतनी जोर से वो चिल्लाया, ओ ओ ओ इस तरीके से वो चिल्लाने लगा, है ना। आई क्राउड आउट, जोर से चिल्लाया, वो सारी खिड़कियां जो है उसमें से भी आवाज गूंजने लगी, इस तरीके से वो चिल्लाने लगा। डोंट मैट्रन डोंट, उस तरह से बोला वो कि मैट्रन ऐसा मत करो, यहाँ हाथ मत लगाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देन आई स्लिप्ड इन द क्लेंचर, क्लेंच जो होता है, जो उनका एक कैबिन जैसा बना होता है जहाँ पे उनको बच्चों को जो तबीयत खराब होती है तो उनको लेटा देते हैं, वहां पर वो लेट गया, ठीक है। आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग, और पूरी सुबह, ऑल मॉर्निंग का मतलब होता है यहाँ पर डे, कि उस दिन उसने एक भी पीरियड, एक भी क्लास अटेंड नहीं की, पूरे दिन जो है, ऑल मॉर्निंग मतलब पूरा उसका जो टाइम था वो लेटा रहा वहां पर, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे का समझते हैं। तो आई मोन्ड, फिर वो दर्द से एकदम पूरे मॉर्निंग जो है बीच बीच में वो आवाज लगाता, चिल्लाता रहा, मतलब दर्द, रोता रहा। दिस वॉज द राइट मूव, क्या बोला, हाँ ये जो कदम है मेरा, कि जिस तरीके से मैंने एक्टिंग की, मैंने अपने दर्द को बिल्कुल रियल लगने दिया ना, ये उसको लगा कि हाँ ये मैंने जो है सही कार्य किया, बड़ा अच्छा काम किया मैंने। देखो विद इन एन आवर, अब 1 घंटे के अंदर, जब वो लेटा हुआ था, 1 घंटे के अंदर क्या हुआ, डॉक्टर आए, भाई डॉक्टर आए और उन्होंने पूरी एग्जामिनेशन की कि भाई क्या इसको प्रॉब्लम है, क्या इसको प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। वो सब, आई डिड माई येल्पिंग एट व्हाट आई थॉट वर द प्रॉपर टाइम, जो सही सटीक जो समय था उस टाइम पे वो अपना येल्पिंग, चीखना जो है उसने जारी रखा, कि भाई डॉक्टर ने जहाँ टच किया, जिस जगह इस तरीके से चिल्लाया, और बीच बीच में थोड़ी एक्टिंग की, तो ताकि लोगों को जो है सच लगे। द मैट्रन रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद जो है वो नर्स वापस आ गई, और क्या कहा उन्होंने, योर मदर्स कमिंग टू फैच यू दिस आफ्टरनून, कि आपकी जो माता जी है वो आपको लेने आ रही, फैच मतलब आपको साथ ले जाने आ रही है। आई डिडंट आंसर हर, है ना, उसने एक्टिंग करके कुछ भी यस सर नो मैम ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई जस्ट ले देयर ट्राइंग टू लुक वेरी इल, है ना, ऐसा वो एक्टिंग कर रहा था जैसे बहुत ज्यादा बीमार है। एंड माई हार्ट, लेकिन देखो क्या बढ़िया फ्रेज दिया हुआ है कि वहां पे वो लेटा हुआ है, वो कोशिश कर रहा है कि वो बहुत बीमार है, लेकिन देखो माई हार्ट वॉज सिंगिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स, कि मेरा जो दिल है वो क्या गा रहा था, बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रहा था। इसका मतलब है कि अंदर से तो मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे, अंदर से जो मैं बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा प्रफुल्लित था, बहुत ज्यादा उत्साहित था, है ना। क्यों? क्योंकि घर जाने को मिलेगा, है ना, तो वही वो चाहता था, उसकी प्लानिंग जो है सक्सेसफुल हो रही है। As I was taken home on a ferry, ferry मतलब रिक्शा जो है किया, और उसको जब उसको घर ले जाने वाले थे, ले जा रहे थे, I felt so wonderful to leave that dreaded school, एकदम dreaded मतलब बहुत ही घटिया स्कूल बिल्डिंग, नफरत करने योग्य स्कूल की बिल्डिंग, that I very nearly forgot, वो इतना ज्यादा खुश हो रहा था उस गाड़ी में बैठे बैठे फेरी में, कि वो बिल्कुल भूल गया था कि मुझे बीमार भी हूँ, मैं बीमारी का मैंने एक्टिंग भी किया था, सब कुछ भूल गया था, है ना, और बहुत खुश था वो, ठीक। तो
दोस्तों उम्मीद है कि ये जो पर्टिकुलर पैसेज है आपको बहुत अच्छे से साफ पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। जिस तरीके से हमने समझा, मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया, मुझे विश्वास है ना। तो इसमें सीधी सी बात है, उस लड़के का क्या, किस तरीके से उसने अपना एक आइडिया बनाया, बीमारी का बहाना बनाया अपेंडिसाइटिस का, और किस तरीके से वो सफल भी हो गया, है ना। जिस तरीके से उसने एक्टिंग की, जहाँ उसको टच करते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे अपेंडिक्स के पास एकदम चिल्लाने लगता वो, है ना, और बढ़िया तरीके से कामयाब हुआ। और स्कूलों में ऐसा होता है भाई, स्कूल में कोई भी स्कूल के जो मेंबर्स हैं वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमारी, आप उनको लगोगे कि आप बीमार हो, तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स को बुलाकर घर भेज देंगे। तो ये भी जो है उस पर्टिकुलर डीडेड स्कूल बिल्डिंग, मतलब सबसे घटिया, उसको बहुत नफरत थी उस बिल्डिंग से, उस स्कूल से। वो जब गया तो उसको बड़ी खुशी हुई। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग बताएं क्या होगा। मैट्रन सस्पेक्टेड दैट द बॉय हैड अपेंडिसाइटिस बिकॉज, ये मैट्रन को डाउट हुआ। अच्छा, मैट्रन जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसको भी लगा कि हाँ हो सकता है कि इसको हो सकता है अपेंडिक्स, क्योंकि इतनी बढ़िया उसने एक्टिंग करी ना, जो उस स्पॉट पे जैसे टच किया फिंगर अपेंडिक्स वाली जगह पर, वो चिल्लाने लगा। तो मैट्रन को लगा ऐसा। अच्छा, मैट्रन को क्या हुआ, सस्पेक्ट हुआ, अच्छा डाउट हुआ, मैट्रन को डाउट हुआ कि बॉय को हो सकता है। क्यों, कैसे, चलो। ही इन्फॉर्म्ड हिज टीचर दैट ही फेल्ट अनवेल, उसने टीचर को इन्फॉर्म किया था, नहीं। आंसर हमको बिल्कुल राइट आंसर देखना है, चलिए देखते हैं। ही हैडंट बीन एबल टू ईट, खा नहीं पा रहा, नहीं होगा। ही स्टैगर्ड इनटू द रूम क्लचिंग हिज स्टमक, स्टैगर्ड इधर उधर भटकता रहा, एकदम ऐसे लड़खड़ाता रहा रूम में, और पेट को हाथ दबाता रहा, ये तो था। ही स्क्रीम्ड व्हेन शी प्रेस्ड द राइट साइड ऑफ हिज स्टमक। देखो चारों ही कुछ ना कुछ क्लोज है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है कि मैट्रन को, क्योंकि पहले तो मैट्रन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, वो उसको लग रहा था कि ये बहाना बना रहा है, लेकिन उसको डाउट कब हुआ कि नहीं इसको सच में हो सकता है, ऐसा उसको यकीन कब होने लगा, जब मैट्रन ने ऐसे फिंगर जो राइट साइड में रखी उसको, है ना, जो इस तरफ रखी, और वो बिल्कुल अपेंडिक्स की जगह रखी, यहाँ पे टच किया, और तब जैसे ही वो चिल्लाया, एकदम उस टाइमिंग पे वो चिल्लाया, उसमें फिर उसको लगा कि नहीं यार सही में इसको हो सकता है। तो ये जो है मोर एग्जैक्ट हमारा एक्यूरेट आंसर है। He screamed when she pressed the right side of his finger, जब राइट साइड पे टच किया ना, तब वो एकदम चीखा, तब उसको यकीन हुआ कि हाँ ये भी इसको, ये बीमारी पेट की हो सकती है, अपेंडिसाइटिस की। ठीक है, तो डी वाला हमारा आंसर है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बॉय हैड बीन एट सेंट पीटर्स फॉर, देखो ये तो शुरू वाली लाइन में दिया है भाई, कितने टाइम के लिए वो आया था वहां पर, बस कितना समय हुआ था उसको उस स्कूल में, केवल 2 हफ्ते। ठीक है, 2 वीक्स ही उसको हुए थे, फर्स्ट लाइन में ही आपका ये दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर ही, यहाँ पर 2 वीक्स फर्स्ट इसी में दिया हुआ है ना। आगे देखते हैं, द सेंटेंस माई हार्ट, हाँ ये इसका क्या मीनिंग है बताएं जरा। माई हार्ट वॉज सिंगिंग ऑल सॉर्ट ऑफ वंडरफुल सॉन्ग, कि मेरा जो दिल है वो हर तरीके के अच्छे अच्छे गीत गा रहा है, मतलब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, तो वेरी वेरी हैप्पी, वॉज वेरी हैप्पी हो सकता है। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक सुनना था, नहीं, म्यूजिक की बात नहीं हो रही, बस म्यूजिक वो आपका एक फ्रेज है। वॉज सिंगर है, नहीं। क्वाइट अनहैप्पी, दुखी है, बिल्कुल नहीं भाई, बहुत खुश था वो तो कि उसका जो आइडिया है वो कामयाब हो गया। इसका बताएं, बॉयज इलनेस वॉज अ, इसकी जो बीमारी है लड़के की वो क्या है, डैश है ना, वो क्या थी, बहाना कर रहा था ना। तो देखते हैं, रियल अटैक था क्या अपेंडिक्स का, अपेंडिसाइटिस का, नहीं था। ट्रिक, एक चाल थी, उसकी चालाकी थी, उसकी एक आइडिया था, टू गेट मैट्रन टू सेंड हिम होम, की ताकि वो जो नर्स है वो उसको घर के लिए भिजवा दे, घर, है ना। तो ये बिल्कुल हो सकता है। रिजल्ट, बहुत ज्यादा क्या खाया था उसने, नहीं। वे टू गेट मैट्रन सिंपैथी, मैट्रन की दया उसको प्राप्त करनी थी, वो भी नहीं है ना। दया प्राप्त करके क्या करता, उसको तो एक्चुअली घर पर जाना था। तो इसलिए बी वाला जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट है। फिर आप देखिए सेंटेंस, आई हैव बीन सिक ऑल मॉर्निंग मीन्स दैट द बॉय वॉज, इसका क्या मतलब है कि बॉय जो है पूरे मॉर्निंग सिक था। अब वो एक्चुअल में सिक नहीं था, बीमार नहीं था, ठीक है, वो एक्चुअली पूरी मॉर्निंग उसने मजे किए, पूरे मॉर्निंग जो है उस क्लेंचर पर वो लेटा रहा और बढ़िया बहाने करता रहा कि मैं बीमार हूँ, है ना। तो पूरा मतलब उसने छुट्टी कर ली, एक तरह से स्कूल गया ही नहीं, भाई नहीं। अनवेल ड्यूरिंग द डे, तो पूरे दिन में अनवेल रहा, है ना। ऑल मॉर्निंग का मतलब वो दिन, ऑल डे, ड्यूरिंग द डे अनवेल,
पिछले दिन, प्रीवियस डे नहीं, या फिर क्या होगा अनवेल ड्यूरिंग द नाइट, नाइट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। ऑलवेज, हमेशा अनवेल नहीं, यहाँ पर जो है ड्यूरिंग द डे, ऑल मॉर्निंग का मतलब है कि दिन में, उस दौरान, है ना, उसको इसी तरीके से बोलते हैं। तो ड्यूरिंग द डे, उस दिन वो पूरी तरीके से उसने अपने आप को एक्टिंग की, बहाना बनाया कि मैं अनवेल हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 63 तक जो क्वेश्चंस थे दोस्तों वो हमारे पैसेज के क्वेश्चंस थे और वो हमने फिनिश किया, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट आपका, पैसेज आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे जो है अलग क्वेश्चंस आ गए सेपरेट, और जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के वापस आपके क्वेश्चंस है दोस्तों। चलिए समझते हैं। सेंटेंस लिखा है, डैन सेड आई नीड अ क्लीन शर्ट। डैन ने क्या कहा? सेड, उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए? एक साफ सुथरी शर्ट चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टेंस को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। मतलब ये जो है प्रेजेंट, ये आपका चेंज हो जाएगा अब पास्ट में, तो नीड का बन जाएगा नीडेड। ठीक है, क्या बन जाएगा? नीडेड। तो डैन और सैड और उसके बाद दैट आ जाएगा। तो यहाँ तक देखो तीनों का सही है, ये दैट, ये दैट, ये दैट और ये दैट, यहाँ तक बिल्कुल सही है, डैन सैड दैट। अब आई जो है वो क्या हो जाएगा? ही। क्यों? क्योंकि इसको डैन शब्द जो है वो मस्क्यूलाइन लग रहा है, ही है ना, कोई लड़का लग रहा है, तो इसका हो जाएगा ही चारों में है। देखो बिल्कुल टेंस के अंदर ही बस एरर है और कोई एरर नहीं है। तो आप देखो सीधी सी बात है, नीड का बन जाएगा नीडेड। नीड का क्या बन जाएगा? नीडेड। तो यहाँ पे विल वगैरह कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, तो ये रॉन्ग। ही वुड नीड, विल की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, तो ये होगा क्यों? सीधा सीधा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नीड का बन जाएगा नीडेड, और क्लीन शर्ट वैसा का वैसा आ जाएगा। ये नीड्स नहीं होने वाला है ना, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में नहीं करना है, हमको पास्ट करना है। तो ये आपका जो है सी वाला राइट ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस वर्ड का सिनोनिम बताना दोस्तों। इसका जो है आपको समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, तो क्या होता है? कंसीटेड। कंसीटेड जो है क्या होगा? स्मर्क होगा, या डिफिडेंट होगा, या मॉडेस्ट होगा, या शाय होगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपका वर्ड है कंसीटेड जो है, ये नेगेटिव सेंस का वर्ड है दोस्तों। ठीक है ना, कंसीटेड जो है नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और इसका जो है बिल्कुल मीनिंग होता है स्मग। क्या मतलब होता है? स्मग। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंस का वर्ड होता है और इसका मीनिंग है शर्मीला, बहुत ज्यादा। कैसा? एक शर्मीला किस्म का जो व्यक्ति है, जिसको शाय हम बोलते हैं, या मॉडेस्ट, या डिफिडेंट, ये तीनों के तीनों जो है इसके सिनोनिम्स है। क्या है ये इसके समानार्थी है। शाय हो गया, मॉडेस्ट हो गया, डिफिडेंट हो गया। स्मग का मतलब होता है एकदम ओवर स्मार्ट के सेंस में, जो बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस है जिसके अंदर, वो हो जाएगा। ठीक है, या फिर बहुत एक्टिव, या फिर आप बोल सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट भी आ जाता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है, या प्राउडी भी हो जाएगा। ठीक है, प्राउडी के सेंस में। तो ये जो है स्मग आपका बिल्कुल राइट सिनोनिम हो गया। एक मिनट सॉरी, ये आप मैंने गलत बोल दिया, ये एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं। ठीक है, ये सब के सब जो है इसके एंटोनिम्स है। ठीक है ना, ये सब जो है इसके क्या है? एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स नहीं। सिनोनिम तो ये है, स्मग है। सिनोनिम जो है इसका स्मग है। ठीक है, और ये सब जो है इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। मतलब स्मग, कंसीडेड का मतलब होता है एक मिनट, तो यहाँ पर भी पूरा हमने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है कंसीडर्ड जो है, इसका मतलब होता है स्मग, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव। बिल्कुल अपोजिट हो गया, बहुत ज़्यादा क्या होगा? एक्टिव होगा, या प्राउडी होगा। क्या होगा? प्राउडी होगा, या फिर स्मग जिसको बोलते हैं। ठीक है, या जिसको चालबाज बोलते हैं, जैसे क्लेवर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्लेवर के सेंस में भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो है आपके तीनों शब्द जो है ये इसके
एक मिनट, ये जो शब्द है डिफिडेंट, शाय और मॉडेस्ट, ये जो है इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा स्मग जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये जो है दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन हमारे पास है। देखो क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन आर ईटिंग द रॉन्ग फूड रिमार्क्ड मिसेस नायर, कि बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो गलत खाना, रॉन्ग फूड को खा रहे हैं, मतलब जो पौष्टिक खाना नहीं है उस खाने को जो है बच्चे खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, है ना। ये बात किसने की, रिमार्क की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया पहले वाले क्वेश्चंस में कि इसके अंदर वाला जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है, जो डायरेक्ट बोला गया किसके द्वारा, मिसेस नायर के द्वारा, और ये जो मिसेस नायर रिमार्क्ड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, जो कि वर्ब आ रहा है। अब ये वर्ब कौन सा है, पास्ट टेंस में है, तो इसमें हम लोग फिर जो है इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे। पास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमको जो है ना एक जनरल ट्रुथ लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, चिल्ड्रन आर ईटिंग रॉन्ग फूड, की बच्चे जो है गलत खाना खा रहे हैं, वो क्या रॉन्ग फूड खा रहे हैं। तो ये आपका एक तरह से जनरल ट्रुथ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत होगी मिसेस नायर रिमार्क्ड, चारों में जो है सेम है। चलिए उसके बाद होगा दैट, तो यहाँ तक जो है सभी का सही है, ठीक है, कि चिल्ड्रन जो है क्या होगा, 8। दोस्तों ये आपका कंटिन्यूस टेंस में है, किस में है, कंटिन्यूस टेंस में है, तो जाहिर सी बात है आईएनजी तो आना ही आना है, आईएनजी तो आपका लगना है। तो देखो यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा हुआ है कहीं पर भी, तो ए वाला आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आप देखो दोस्तों आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हो सकता है सही, और यहाँ पर देखो आईएनजी नहीं लगा हुआ है। भाई कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो आईएनजी तो आपको किसी भी हालत में लगाना है, ठीक है। अब ये देखो परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया, तो देखो भाई अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो क्या होगा, या तो पास्ट कंटिन्यूस होगा या सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पूरा परफेक्ट कंटिन्यूस में हो गया सॉरी, तो ये भी नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है आंसर ये होगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर इसमें जो है प्रेजेंट है और आपने कहा था पास्ट होना चाहिए, तो ये वर होना था, ये वर क्यों नहीं है दोस्तों, ये वर इसलिए नहीं है, देखो आप फॉर, मैं आपको बताता हूं कि फॉर ये आपका एक जनरल, एक मिनट, फॉर जनरल ट्रुथ, फॉर जनरल ट्रुथ वी डोंट चेंज द टेंस। जनरल ट्रुथ की जब हम बात करते हैं तो हम लोग जो है टेंस को चेंज नहीं करते हैं, टेंस रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि एक जनरल यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, मतलब एक जनरल सेंस में बताया जा रहा है, एक जनरल ट्रुथ है, सच्चाई है कि बच्चे जो है वो क्या नहीं करते, बच्चे जो है वो गलत खाना खा रहे हैं आजकल, है ना। एक तरह से एक जनरल क्या है, ये प्रथा है, एक तरह से रूटीन है या कोई हैबिट है, एक तरह से चलन है, ठीक है, ये एक तरह से ट्रेंड है, क्या है, ये अभी का एक बनता हुआ ट्रेंड है। तो जब इस तरह की जब बात होती है तो उसमें टेंस को दोस्तों हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे आर करेक्ट है। मिस्टर मिसेस नायर रिमार्क्ड दैट चिल्ड्रन आर ईटिंग रॉन्ग फूड्स, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 67 वाला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हमको चूज करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का देखो क्या लिखा है, आई डोंट वांट टू हैंग दिस पिक्चर हियर, मैरी सेड। तो जाहिर सी बात है शुरुआत कैसे होगा, मैरी सेड दैट, या टोल्ड भी हो सकता है, बट यहाँ पर दैट तो यहाँ पर नहीं लगा है। चलिए चारों में नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मैरी एक लेडी है तो आई का बन जाएगा शी, ठीक है, और डोंट है इसका पास्ट टेंस कर देंगे तो शी के साथ क्या आ जाएगा, डिडंट आ जाएगा। तो आप ये ढूंढो कि मैरी सेड के बाद शी डिडंट आ रहा है, शी डिडंट देखो दोस्तों चारों में आ रहा है, और वांट टू जो है दोस्तों ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, वांट टू कभी चेंज नहीं होगा, वांट टू एज इट इज, शी डिडंट वांट टू, है ना। क्यों, क्योंकि पास्ट टेंस करना था तो डोंट का डिडंट कर दिया। अब बार बार हम लोग हर एक वर्ब में पास्ट टेंस चेंज नहीं करेंगे, है ना, तो ये want to as it is रहेगा। देखो चारों में want to as it is है ना, मतलब देखो कितना
क्लोज आपका आपके ऑप्शंस है, ठीक है। तो want to क्या होगा फिर, हैंग, तो शी डिडंट वांट टू हैंग। दोस्तों हमेशा टू आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट, चारों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का एरर तो नहीं है, देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, शी डिडंट वांट टू हैंग दिस पिक्चर हियर। अच्छा यहाँ देखो, दिस के बदले दैट हो जाएगा और हियर के बदले देयर हो जाएगा। देखो ये इनको पता करना था कि भाई हमको ये चीज पता है कि नहीं पता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस लिखा हुआ है तो रॉन्ग कर दो, बाकी सब सेम सेम है। देखो दैट लिखा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हियर है तो देयर चाहिए, तो यहाँ पे हियर ही लिखा हुआ है तो रॉन्ग हो गया। और शी डिडंट want to hang, वापस से देखो आप दिस आ गया तो दिस नहीं चाहिए, और यहाँ पे देयर बराबर है लेकिन ये भी रॉन्ग। चलिए तो दिस और दैट, हियर, दिस और हियर सुनने के लिए पता करने के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन दिया था। तो लास्ट वाला हमारा सही है। देखो मैरी सेड शी डिडंट वांट टू हैंग, कौन सी पिक्चर, वो वाली, दैट पिक्चर। हियर का हो जाता, दिस का हो जाता है दैट, ठीक है, याद रखना है। दिस हमारा हो जाएगा दैट, और हियर यहाँ पर हो जाएगा वहां पर देयर, ठीक है। मतलब डी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो है इसका एंटोनिम हमको बताना है। वाइब्रेंट, आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से ये सुना होगा ना कि वाइब्रेंट इंडिया, वाइब्रेंट भारत, है ना, इस तरीके से आपने सुना होगा। तो इसका अपोजिट चाहिए। वाइब्रेंट का मतलब होता है ब्राइट या ब्रिलियंट, ठीक है, ब्राइट, ब्रिलियंट, होनहार, इंटेलिजेंट, इस तरीके से। तो ये आपका ये जो है इनके सिनोनिम्स है, ये क्या है, सारे दोनों सिनोनिम्स है। तो इसका जो एंटोनिम है वो ये हो जाएगा, ठीक है, लिस्टलेस, जिसको कहा जाता है, जो लेस नोन जिसको कहा जाता है। लिस्टलेस मतलब जो है लेस नोन, लेस नोन, है ना, जो बहुत ही कम लोग जिसको जानते हैं, जो बहुत ही लेस फेमस है, जो कम फेमस है। तो जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है उसको लिस्टलेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका एकदम एक्यूरेट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा वापस से क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव का क्वेश्चन दोस्तों। चलिए देखते हैं। और फोर्सेस हैड कॉन्कर्ड द फोर्ट बाय डेब्रेक। डेब्रेक का मतलब है दिन के अंत से पहले पहले, बाय डेब्रेक का मतलब अंत होने तक जो है हमारी जो फोर्सेस हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, उन्होंने क्या कर लिया था, उन्होंने उस किले पे कब्जा जमा लिया था, कब्जा कर लिया था। तो हैड आ गया दोस्तों, तो हैड कॉन्कर्ड आया, तो आपको बस इतना याद रखना है, पास्ट परफेक्ट है तो उसके साथ बस बीन लगा दो, तो हैड बीन कॉन्कर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा है एक्टिव और यहाँ पर जो है पैसिव। तो हमको बस ये रखना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हैड और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर हमको हैड हो जाएगा, उसके बाद बीन हो जाएगा, और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और बाकी जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पर शुरुआत सब्जेक्ट से है और यहाँ पर जो है एंडिंग ऑब्जेक्ट से है। तो इधर जो है शुरुआत ऑब्जेक्ट से कर देंगे, किससे, ऑब्जेक्ट से कर देंगे, और एंडिंग जो है बाय लगाकर सब्जेक्ट से कर देंगे। तो आर फोर्सेस जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। हैड कॉन्कर्ड जो है ये हमारा जो है ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब है। द फोर्ट जो है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो है अदर वर्ड्स हैं। तो शुरुआत द फोर्ट से ही होने वाली है चारों में, ठीक है। बस हमको टेंस का एरर है, तो हैड क्या, हैड बीन हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा है, वॉज बीइंग या एनजी वाले में आता है, ये नहीं होगा। विल बी ये फ्यूचर वाले में आता है, ये नहीं होगा। हैड बीन कॉन्कर्ड बिल्कुल हमारा करेक्ट है। बाय आर फोर्सेस बिफोर द डे ब्रेक, बिल्कुल सही। वॉज पास्ट टेंस है, ये भी नहीं होने वाला है, मतलब सी वाला जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फाइनली हमारा जो है एक नया तरह का क्वेश्चन आया, जो कि हमारा जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं।
रीअरेंजमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है और इसकी जो ट्रिक है जैसे कि मैंने पहले बताई, इसमें आपको पहले तो स्टार्टर देखना है और उसके बाद जो है पेयरिंग करना है। क्या करना है? पेयरिंग। इस क्वेश्चन में आप देखें कि पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन जो करेक्ट हो, इस क्वेश्चन में आप देखें दोस्तों कि शुरुआत जो है वो ए से हो रही, चारों में जो है आपकी शुरुआत जो है ए से हो रही। इसका मतलब स्टार्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है, बस हमको पेयर बनाना है। ये हमारा ए जो है वो स्टार्टर है। आप देखो क्या, एज द ट्रेन अप्रोच्ड द सी साइड टाउन आई वेंट इनटू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग्स। ठीक है, तो इसमें स्टार्टर क्या है कि जैसे ही ट्रेन कहाँ गई, सी साइड टाउन मतलब एक समुद्र किनारे वाले जो विलेज है वहाँ पर, सी समुद्र के छोर पर जब किनारे से जब जा रही थी ट्रेन, तो मैं थोड़ा सा इनटू द कॉरिडोर, मैं कॉरिडोर में चला गया खड़ा होके। क्यों? ताकि मैं अपने पाँव को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, है ना। ऐसा होता है अक्सर, ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, पाँव हमारे पूरे जाम हो जाते हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, सही होने के लिए उसने क्या किया, उसने थोड़ा कॉरिडोर में आगे चला गया। अब देखते हैं क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, आई हैड मैड, मैं मिल चुका था, अर्लियर व्हेन द प्लेटफॉर्म ऑन द प्लेटफॉर्म आई हैड मैड हिम। अब ये यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे वो बता रहा है कि जब सी साइड पर ट्रेन गई तो मैं जो है मैं अपने पाँव को स्ट्रेच करने के लिए बाहर कॉरिडोर में आ गया। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मैं उससे मिला। अब जाहिर सी बात है किसी इंसान से मिलने की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर इस ए में उस इंसान का विवरण नहीं हो रहा है भाई, ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन से व्यक्ति से मिला, है ना। तो सीधा यहाँ पे आई हैड में उससे मिला और यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है, मतलब ए और बी का पेयर नहीं होगा, है ना। इस तरीके से देखो आप कर सकते हो इसको, ए बी का पेयर नहीं होगा दोस्तों। ए बी एक साथ जहां पर भी उसको कट कर दो, ए बी यहाँ पर एक साथ है, ए वाला पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। अब सी पढ़ते हैं, आई स्टेड देयर फॉर अ शॉर्ट वाइल, कि मैं वहां पर जो है थोड़ी देर के लिए रुका। ये हो सकता है, कहाँ पे रुका, कॉरिडोर की बात हो रही है भाई, कॉरिडोर में गया ना वो, थोड़ी देर वहां पे जो है मैं खड़ा रहा स्ट्रेट, तो ये हो सकता है। मतलब ए और सी का जो पेयर हमारा बन सकता है। ठीक है, चलिए, और ए और सी के दो ऑप्शन है, यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है। अब देखते हैं ए डी होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं हम लोग। आई एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विथ वन ऑफ द पैसेंजर। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया कि पहले तो ट्रेन अप्रोच आई और फिर मैं उस कॉरिडोर में गया अपने पाँव सीधे। मैंने क्या किया, कुछ शब्द, फ्यू वर्ड्स जो है एक्सचेंज किया, किससे, विथ वन ऑफ द पैसेंजर, एक किसी पैसेंजर से कुछ शब्द मैंने शेयर किए। ये लग रहा है हो सकता है, बट उससे पहले ये लग रहा है कि वो वहां पर जाहिर सी बात है कुछ देर खड़ा रहा, है ना। पहले वो कुछ देर खड़ा रहा, उसके बाद उसने उनसे बात की। मतलब हमारा जो है ए और डी का तो डायरेक्ट पेयर नहीं बन रहा है, ए सी का बन रहा है और ए बी का पेयर ए और सी का पेयर बन रहा है। और सी के बाद आप देखो क्या लग रहा है कि मैंने क्या किया, कुछ बातचीत की, कुछ एक किसी पैसेंजर से बात की। मतलब जो है सी के बाद जो है क्या लग रहा है दोस्तों, डी लग रहा है। और डी के बाद देखो आगे बी क्या है, आई हैड मेट हिम अर्लियर ऑन द प्लेटफॉर्म। और ये वो व्यक्ति है, एक जो पैसेंजर है जिससे कि मैं पहले मिल चुका था प्लेटफॉर्म पर। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, मीनिंग वाइज जो है बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं शुरू से। एज द ट्रेन अप्रोच द सी साइड आई वेंट इनटू द कॉरिडोर, मैं कॉरिडोर में गया अपने पाँव सीधे करने के लिए। ठीक है, फिर आई स्टेड देयर, मैं वहां पर रुका कॉरिडोर में थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है कुछ शब्द एक्सचेंज किए, मतलब कुछ बातचीत की किसी एक पैसेंजर से वहां पर जो खड़े थे कॉरिडोर में, उनमें से। और मैं उस व्यक्ति से, कौन से, इस पैसेंजर से जिससे मैंने बात की, उससे जो है मैं प्लेटफॉर्म पर पहले मिल चुका हूं। इसका मतलब ये सी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट अरेंजमेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये भी हमारा जो है जंबल सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, उसका क्वेश्चन है और इसमें भी आप देखें कि अच्छा चलिए, इसमें जो है स्टार्टर नहीं दिया हुआ है, स्टार्टर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टार्टर देखेंगे और उसके बाद जो है पेयरिंग देखते हैं। आप देखो तीन ऑप्शन में ए से शुरुआत है, मतलब ए लग सकता है स्टार्टर। देखते हैं, इन अ होटल रूम आई रेस्टेड टिल डिनर टाइम। होटल रूम में जो है मैं डिनर के समय तक जो है वहां पर मैंने आराम किया, बिल्कुल लग रहा है स्टार्टर। चलिए आगे देखते हैं। आई हैड नॉट एस्केप्ड फ्रॉम माई टायरसम नेबर आफ्टर ऑल, कि मैं जो है
नहीं भागा, मतलब दूर नहीं भागा। किससे? मेरा जो थका देने वाला मेरा जो पड़ोसी है, जो मुझे थका दिया जिसने, उससे मैं दूर नहीं भागा, एस्केप नहीं किया, है ना। तो आई कौन है इसमें पता नहीं चल रहा, बी स्टार्टर नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर भी नहीं दिया है। आई हैड बेयरली रेज द ग्लास टू माई लिप्स व्हेन अ फेमिलियर वॉइस ग्रीटेड मी, कि मैंने हार्डली, बेयरली का मतलब होता है हार्डली या मुश्किल से, क्या मतलब होता है मुश्किल या मुश्किल, जिसको कहते हैं ना अरे रॉन्ग हो गई स्पेलिंग, फिर से लिख देते हैं। हार्डली का मतलब है इसको हम बोल सकते हैं मुश्किल, मुश्किल या फिर मुश्किल से, है ना। मतलब ये किया ही था कि, है ना, मैंने उसको अपने ग्लास को ऐसे लिप्स पर लगाया ही था कि किसी ने क्या कर दी, एक जानी पहचानी सी आवाज ने मुझे मेरा स्वागत किया, मुझे ग्रीट किया, इस तरीके से बताई जा रहा है। ठीक है, सी हमारा वैसे ही नहीं है ऑप्शन में, तो आगे देखते हैं। देन आई वेंट डाउन एंड ऑर्डर्ड अ ड्रिंक, फिर मैं नीचे गया और मैंने क्या किया, एक ड्रिंक को ऑर्डर किया। तो देन के बाद तो ये हमारा स्टार्टर तो नहीं होगा दोस्तों, तो डी वाला हमारा वैसे ही कैंसिल। अब हम लोगों को जो है पेयरिंग बनाना है। भाई पेयरिंग में ए से शुरुआत हो रही है, कहाँ पर सीन है, होटल रूम का है, जहां पर मैंने डिनर तक आराम किया। अब हमको पेयर बनाना है, देखते हैं क्या पेयरिंग होगा, ए सी होगा, ए बी होगा या ए डी होगा। बी होगा क्या, देखते हैं। तो होटल रूम में जो है मैंने रेस्ट किया डिनर टाइम तक। आई हैड नॉट एस्केप फ्रॉम माई लिप्स नेबर फ्रॉम माई टायरसम नेबर आफ्टर। अब यहां पर देखो दोस्तों, वो आराम कर रहा था, ठीक है। अब होटल के रूम में आराम कर रहा था और वहां पे दूसरे पॉइंट में किसी पड़ोसी की बात हो रही है कि पड़ोसी से वो दूर नहीं भागा। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मीनिंग भी नहीं आ रहा है, ए और बी का कोई पेयरिंग ही नहीं हो रहा है। तो ए बी का आपका पेयरिंग नहीं होने वाला है। भाई ए बी का पेयरिंग नहीं होगा, बी वाला पॉइंट कैंसिल कर दिया, ठीक है। बी वाला भी हमारा क्रॉस हो गया, सी वाला भी गया। अब या तो ए सी होगा, देख लेते हैं, या ए डी होगा। तो देखो ए सी होगा कि नहीं, होटल रूम में मैंने डिनर टाइम तक, रात तक जो है आराम किया। फिर आई हैड बेयरली रेज द ग्लास, मैंने जैसे ही ग्लास रेज किया मेरे लिप्स तक, वेन अ फैमिलियर वॉइस, एक जानी पहचानी जो आवाज है, उसने मेरा स्वागत किया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि होटल रूम के अंदर ऐसे कौन स्वागत करता है, कौन ग्रीट करता है, हाय हेलो इस तरीके से। वो तो जब आपको कोई आवाज कब लगाता है, जब आप पब्लिकली कहीं बैठे हुए हो, ग्राउंड में हो, कहीं पर हो, मार्केट में हो, तो आपको कोई हाय हेलो करता है। अब होटल रूम में जब आप बंद हो, डिनर किया, उस टाइम आपको कौन ग्रीट करेगा। तो थोड़ा सा पेयरिंग हमको नहीं लग रहा है कि इसका पेयरिंग हो रहा है ना, इसका पेयरिंग नहीं लग रहा है। अब देखते हैं एडी। तो देखो मैं होटल रूम में था, डिनर किया, उसके जस्ट बाद रेस्ट किया, कर ही रहा था। देन आई वेंट डाउन, हाँ, एंड ऑर्डर अ ड्रिंक। अब ये देखो वो ड्रिंक वाले रूम में, जो कॉमन रूम है, वहां चला गया, वो नीचे गया और वहां उसने ऑर्डर किया क्या, ड्रिंक। वो पब्लिक प्लेस है, वहां कोई भी हाय हाय हेलो कर सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, एडी का पेयर है। ठीक है, देखो उसने क्या किया, नीचे गया, ड्रिंक ऑर्डर की, उसके बाद उसने वो ग्लास लिया ही था ऐसे लिप पे, और तुरंत किसी की एक आवाज आ गई, और इसलिए जो है उसने क्या किया, मैं उससे भागा नहीं। ये पकाऊ था, टायरसम मतलब बिल्कुल बोरिंग या पकाऊ नेबर से मैं उससे दूर नहीं भागा। तो हमारा डी वाला जो है बिल्कुल राइट रीअरेंजमेंट है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, चलिए।